You remember the India Today expose Aapka scam where we showed how Arvind Kejriwal's brother-in-law Surinder Bansal had submitted fake bills from a fake company to claim money from the PWD. Now the whistleblower in this scam, Rahul Sharma, who runs an NGO, who worked with India Today in putting this expose together, had a very lethal attempt on his life. He was in a vehicle, two people came on a motorcycle, tried to shoot him. The problem is, why would somebody who's a whistleblower so soon after having acted as a whistleblower have an attempt on his life? What's going on? Who's rattled and why? Here's the story. A busy street in Greater Noida, and on this street, in broad daylight, an attempt to kill a man. The man on the receiving end of the bullet, Rahul Sharma, who blew the whistle on the alleged PWD scam by Delhi Chief Minister's relative. The man who exposed Kejriwal's late brother-in-law Surinder Kumar Bansal's role in financial irregularities in the construction of a drainage system in northwest Delhi's Bakoli village. Rahul survived to narrate the ordeal, claiming it was the Aam Aadmi Party behind the attack. जब मैं यहाँ से निकला तो उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके और उन्होंने बिल्कुल शूट किया। शूट हुआ, लेकिन वो मेरा लक अच्छा था कि वो मिस हुआ। मिस होने के बाद दोबारा उन्होंने कोशिश की कॉक करके लोड करके दोबारा चलाने की। जब से ये प्रकरण शिकायत का चला है FIR होने तक, जब से इसमें बराबर मेरी फैमिली को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को बराबर उन्होंने, उससे पहले मुझे भी लोगों को भेज करके कई बार दबाव डालने की कोशिश करी कि इस केस को वापस ले लीजिए। नहीं, ये कोई सदन की मर्यादा है। The attack came just a day after Kapil Mishra, who also exposed the Aam Aadmi Party's alleged involvement in various scams, was attacked inside the Delhi Assembly. Mishra was allegedly assaulted by Aam Aadmi Party MLAs Madan Lal, Jarnail Singh and Amanatullah Khan. Yesterday what happened, they tried to hold my neck and they tried to attack me inside the assembly yesterday, and at the same time Rahul Sharma was attacked. Bullets were fired on him, and it is as if Arvind Kejriwal is trying to shut every single person who is exposing him. कपिल मिश्रा जी अध्यक्ष महोदय की तरफ बैनर लेके बढ़ रहे थे, उनको 2-3 विधायकों ने रोकने का प्रयास जरूर किया है। आप पूरा वीडियो देखिए, मेरे ख्याल से उनके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई और मार्शल के थ्रू बाहर करने की परंपरा है विधानसभा में, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष का नेता हो। सीधा सीधा ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का जो क्रिमिनल फेस है, जो आपराधिक चेहरा है, वो अब लोगों के सामने आ रहा है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो इनके ऊपर आरोप लगा रहा है या कोई साक्ष्य लेके आ रहा है, अब उसके ऊपर अटैक हो रहा है। Whether the Aam Aadmi Party was behind the attack on Rahul Sharma still remains to be ascertained, but the timing of the attack on both men who led the charge against Kejriwal does raise some big questions. With Himanshu Mishra, Parveena Purkayast and Kapil Sharma, Bureau Report, India Today. Remember, this was an India Today investigation, Aapka Scam Part 1, Part 2, Part 3. We were coordinating and working very closely with Rahul Sharma and his team that runs the NGO, the Roads Anti-Corruption Organization, or RACO. A visibly shaken Rahul Sharma is now joining me. Anil Bajpai is a MLA of the Aam Aadmi Party. The both of them are with me in the studio. सबसे पहले तो राहुल, शुक्र है ऊपर वाले का कि आप सेफ हैं। वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, जिस तरीके से अटैक हुआ, आप हमारे दर्शकों को ज़रा डिस्क्राइब कीजिए कि क्या ये पूरा वाक़या था, क्या आपको पहले से कोई थ्रेट्स आ रही थी, कैसे हुआ एकाएक ये जो आपके सामने इस वक्त तस्वीरें? देखिए सर, जब से 9 जनवरी 2017 को जब से हमने ये स्कैम की कंप्लेंट की थी और इसको एक्सपोज किया था, तो उस पर हम लोगों ने कोर्ट मूव किया। उसके बाद से बराबर हमारे पास थ्रेट्स थी, दबाव बन रहे। सर ऐसे ही अननोन पर्सन्स थे, घर पर जा रहे थे और हमारे एक साथी के साथ में मारपीट भी हुई।
उसके बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ को और मेरे ब्रदर को भी लोगों ने कहा कि राहुल कौन लोग हैं ये, क्या कहते हैं फोन कर? अननोन पर्सन्स थे सर, बीच में जैसे कोर्ट से वापस कोई आ रहा है उसको रोक लिया, 4-5 लोग थे कि हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उसकी एफआईआर हमने रजिस्ट्रेशन कराया। लोग अपने आप को आपके बता रहे थे, पर आपके पास तो प्रूफ नहीं है प्रूफ कि आपके थे कि नहीं थे? नहीं सर, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर ये लोग अपने आप को आपके बता रहे हैं। हाँ कि और ये जितना भी एक्टिविज्म तुम लोग कर रहे हो इसको बंद कर दो, वरना राहुल शर्मा को समझा देना, वरना जान से मार देंगे। अनिल जी, ये क्या बात है, क्या समझाना है आपको राहुल शर्मा को? इन्होंने पुलिस ने कंप्लेंट्स कराई है, ये खुद ही स्वयं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हम लोग हैं, कोई आदमी हमारी पार्टी का नाम लेके हमको बदनाम करने नहीं, पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत चिंता की बात है कि आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके रिश्तेदार के खिलाफ करप्शन का चार्ज लगता है और उसके कुछ दिन बाद एक जानलेवा टाइप का हमला हो जाता है? ये देखिए कि इत्तेफाक भी तो हो सकता है, कि डायरेक्टली नाम तो नहीं ले रहे हैं, ये तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई हमने एफआईआर दर्ज कराई कि हम पर ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है। ये डायरेक्टली तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो फोन कर रहा है वो कह रहा है कि आपके लोगों, मेरे पास 11 हमारा नाम देखिए, 11 तारीख को किसका फोन है? एक्चुअली मैं बाहर था जिस टाइम ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो मैं यहाँ पर 11 तारीख को वापस आया था, तो उस टाइम भी मेरे पास फ़ोन आया था। उस वक्त मैं विजय चौक के आसपास था कि ये बहुत दिन से तुम समाज सेवा कर रहे हो, समाज सेवा बंद कर दो, तुमको कई बार तुम्हारी फैमिली वालों को समझा दिया है, और वो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। तो मैं पूछता रह गया कि तुम बोल कौन रहे हो, ठीक है तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन बताओ तो सही तुम हो कौन। बस सर इतना फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं बराबर फ़ोन मिलाया, कुछ नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में मैं उसकी कंप्लेंट भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए ना सर। मैं पुलिस में अनिल जी, अरविंद केजरीवाल अब तक इस पूरे स्कैम पर खामोश क्यों है? दुनिया भर ईवीएम ऐसा वैसा, उनके साड़ू भाई पे आरोप, आप मुस्कुरा रहे, उनके साड़ू भाई पे आरोप लगे, फेक कंपनी फेक बिल, ये तो इंडिया टुडे की खुद की तहकीकात ने दिखाया। अब तक खामोश है, बताया नहीं कि सही है गलत है, क्या कहना है, क्या ये ओके है कि वो चीफ मिनिस्टर है, उनका ब्रदर इन लॉ फेक बिल दे रहा है फेक कंपनी के? देखिए राहुल जी, पहले तो मैं राहुल जी की एक बात का जवाब ये देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं हमने पार्लियामेंट थाने में रिपोर्ट लिखाई, जिस नंबर से टेलीफोन आया ये एक जांच का विषय है। और नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा चीफ मिनिस्टर केजरीवाल? आपके सुप्रीमो, आपके बॉस खामोश क्यों है? नहीं, खामोश की, देखिए वो क्या बोलेंगे मुझे बताइए आप। नहीं, क्या बोलेंगे मतलब? क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ को फेवर किया नहीं किया, ब्रदर इन लॉ की कंपनी ने फेक, मन गलत नहीं है जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ब्रदर इन नहीं उनके ब्रदर इन लॉ ने फेक कंपनी के फेक बिल दिए, ये तो साबित हो चुका है। हम लोगों के पास इंपेक्स के फेक बिल हैं, हम उस कंपनी के दफ्तर गए, वहां पर कोई दफ्तर था ही नहीं, कोई कंपनी नहीं थी, तो ये तो मामला पूरा फर्जीवाड़ा है। उसमें जांच चल रही है। नहीं, पर अरे वैसे आप दुनिया को जहां को जांच चल रही है, अरे आप बोलते रहते मोदी खामोश क्यों है, मनमोहन सिंह खामोश क्यों है, जब आप ऑपोजिशन में थे तब तो आप बार-बार बोलते रहते थे कि खामोश क्यों है, वो खामोश क्यों है। देखिए मेरी बात सुनिए, एक जांच का विषय है, जांच चल रही है। अगर जांच ये ठीक है राहुल का कहना कि केजरीवाल को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जांच चल रही है। नहीं सर, वो तो बिना उनके इन्फ्लुएंस के तो वो धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती। अगर मैं अब अगर टेक्निकल ग्राउंड पर आ जाऊंगा तो मेरी एक बात का जवाब नहीं है। 56% बिलों पे मार्केट रेट से 50% बिलों पे वर्क अवार्ड हुआ, इनकी सरकार में वो वर्क स्टार्ट हुआ। सर मार्केट के अंदर अगर 300 रुपये का सीमेंट का बैग है तो 150 रुपये में कहाँ से खरीदा सुरेंद्र बंसल जी ने? 50 रुपये किलो का स्टील मार्केट में आ रहा है, 50 रुपीज़ पर केजी का, 25 रुपीज़ पर केजी का कहाँ से खरीदा? जब हमने इनसे पूछा कि इतना सस्ता माल आपने कहाँ से खरीदा, अगर खरीदा है तो उसकी क्वांटिटी क्वालिटी हमको बताइए, दिखाइए कहाँ काम किया है, डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया। उसके बाद इन्होंने जब हमने प्रेशर डाला, इनवॉइसेस दिए, सेल टैक्स से वेरीफाई कराए, तो वो सारे फर्जी हैं। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, 2 करोड़ 60 लाख रुपए के वर्क में 1 करोड़ 41 लाख रुपए के सरिये के बिल फर्जी हैं सर। Absolutely, and this is not a question, Mr. Vajpayee, that the Aam Aadmi Party Supremo can simply run away from. We are glad that you are safe. We are glad that you are here to talk about this story. We have another follow-up investigation we are working on. We'll have that out very soon. Thank you very much, the both of you, for joining us. On the newsroom now, we're slipping into a break. Aapka Scam Part 4 is in the works. We hope to have this story out for you very soon. Another hard-hitting India Today expose. Terrorists owing their allegiance to Zakir Musa, the breakaway former Hizbul commander, today put out a statement in which they surprisingly claim that they were the ones who got Sabzar Bhatt killed. Sabzar Bhatt was appointed the divisional valley commander of the Hizbul Mujahideen. This has led to
what India Today had broken the day before yesterday. An all-out terrorist versus terrorist, Hizbul Mujahideen versus the Islamic State battle play out now in Kashmir. So on the one side, this is great for India because you've got terrorists trying to kill each other. On the other side, you've now got the possibility of the Islamic State and its ideology raising its head in the Kashmir Valley. Gaurav Sawant with this story. They call themselves selfless warriors. They say they're fighting for Kashmir. But now their true face has been revealed. Power hungry and selfish. The terrorists of Kashmir are involved in a deadly power tussle. A factional war breaking out in the Hizbul Mujahideen. On one side is the founder and chief of the terror outfit, Sayyid Salahuddin, hiding in Pakistan-occupied Kashmir. And his opponent, Zakir Musa, a religious fundamentalist. जो संगबाज भाई हमारे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो जब भी पत्थर उठाए तो वो इस्लाम के लिए हो. His supporters have now issued a sinister threat. हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जो मूसा भाई और शेरे के रास्ते में आएगा वो खाली मूसा भाई का नहीं बल्कि पूरे इस्लाम का, खास तौर पर कश्मीर का मुनाफिक और दुश्मन है. सफदर खान के मरने के बाद चाहे आप रियाज को या सदा को उसकी जगह दे दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है. लेकिन जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंजाम वही होगा जो सफदर डाम का हुआ. But why did the internal war break out? Zakir Musa, who was appointed as the head initially of Hizbul Mujahideen after Burhan Wani was killed, he fell out with the Sayyid Salahuddin faction because he said this is a war for Islam to establish a caliphate, and he hit out against Hurriyat leaders like Sayyid Ali Shah Gilani. So Musa says Islam is the focus, but that's exactly what terrorist Burhan Wani had also said, that this is not a war for Azadi, this is a war to establish an Islamic caliphate in Kashmir. Then Musa was sidelined because the Hurriyat and others felt that the narrative was going away. The already complex situation in the valley is now getting more complicated, with the terrorists tipping the forces off against each other. कल रात आरामपुरा में क्रैकडाउन हुआ, उसकी खबर भी हमने ही दी थी. हमें इस तरह हमारे रास्ते में आने वालों की खबर पुलिस को करते रहेंगे. The terror propaganda is being demolished by the very people who created it. And terrorists are themselves taking off their masks. They aren't ideological warriors, but simple mercenaries hungry for power. With Gaurav Sawant, Bureau Report, India Today. This is where we wrap up the newsroom tonight. I look forward to seeing you at 10 p.m. tomorrow evening with another action-packed edition of the newsroom. Till then, from all of us here in the India Today newsroom, goodbye, good night.